Hello friends, very good afternoon to everybody. I'm Namita, welcoming you to my channel. Again, I came up with another video. So, first question over. So, now we'll do question number 2, accountability and feedback mechanism. 2 and 4 will try to do in this video. Okay? So, let's start question number 2. What is accountability? How to develop accountability in teachers? This is last year question, it may come. So friends, what do you mean by accountability? Accountability means we can say accountable or responsibility or answerability. Okay, so teaching is a noble profession, and accountability is an inherent part of teaching. Okay, accountability is the part of teaching. So teachers should be accountability towards their work. The teacher should be accountability, a responsibility to to their duty. Teachers should be answerable to the parents, to the director, to the headmaster, or you can say the principal. Okay, so what do you mean by accountability? You will see here. So the definition: a teacher's accountability is related to the teacher's responsibility. Teacher's accountability is related with teacher's responsibility for their student, responsibility towards their work. Okay, and responsibility how to develop and bring progress in learning and students performance. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई पेरेंट्स आए हैं स्कूल को, किसका पेरेंट्स आया, किसी बच्चे का पेरेंट्स आया. सो व्हाट इज़ द अकाउंटेबिलिटी नेचर ऑफ द टीचर? मीन्स द टीचर शुड आंसरेबल टू द पेरेंट्स. येस, आपका चाइल्ड का ये कमी है, आपका चाइल्ड इसमें अच्छा करता है, हम ऐसे उनको पढ़ा रहे, हमारा सिलेबस ये है, हमारा कंटेंट ये है. ओके, दिस इज आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स अकाउंटेबिलिटी. सो accountability in teachers, why it is important? Tell me, what do you think? Friends, nowadays what happening? The students are going to school, but they don't know the basic knowledge. ओके, अभी हम गवर्नमेंट स्कूल को देखें, आजकल तो सभी प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन्स जा रहे. बाकी स्कूल जाने का फ़ायदा क्या है? स्कूल में तो अभी देखो कितने आवर्स रहते हैं, पूरा 10 जाके 4 o'clock आते हैं या 9 को 3, इतना टाइम रहते हैं, स्टिल उनको कुछ भी नहीं आता है. सो इसी में किसका फॉल्ट है? सो the teachers help in implementing the goals and groundwork set by the school. टीचर्स को क्या होना चाहिए? टीचर्स का काम ऐसा नहीं है कि अभी क्लास है, चलो 45 मिनट्स का क्लास है, अभी गई और क्या कुछ एक टॉपिक था, पढ़ा के आ गए, काम ख़त्म. नहीं, द टीचर्स शुड बी implement the goals and groundwork set by the school, the administration, the parents and community. टीचर्स को बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ना कि बस क्लास जाओ और पढ़ा के आ जाओ. ऐसा नहीं है. अभी एक बच्चा कमी है, उससे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, उसका मार्क क्यों कमी आ रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, वो सब टीचर्स को देखना चाहिए. imparting education and ensuring that everyone gets the benefit from the program. ठीक है. क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको आना चाहिए, सबको वो बेनिफिट मिलना चाहिए. ठीक है.
sincerely and regularly attend the class. Who? The teachers, for not the students. First the teachers should be sincerely and regularly attend the classes, have good knowledge about his or her area, नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट. अभी वो साइंस टीचर को अच्छे से साइंस का सारे नॉलेज होना चाहिए, मैथ्स टीचर को मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. फॉलोइंग द गाइडलाइंस एंड रूल्स ऑफ द स्कूल एंड टीचिंग एज पर ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस. सो टीचर्स को क्या करना चाहिए? They need to follow the guidelines and rules of the school, rules and regulation of the school, and the requirement of the syllabus. syllabus का requirement क्या है उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए. ठीक है. एंड एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट. क्लासरूम में सारे बच्चों को एक ही तरह ट्रीट करना चाहिए. ओके उनको अच्छे से पढ़ाना चाहिए. पेरेंट्स को उनका प्रॉब्लम बताना चाहिए. अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पेरेंट्स, उनको सब कुछ बताना चाहिए. ठीक है. एंड सम कमिटीज आर देयर who suggested the reforms in accountability. सो अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए टीचर्स में, स्कूल में. कौन? विच कमिटी वर्क ऑन दैट? The NPE, National Policy Education 1986, and SR Sen Committee suggested the reform, and Rastogi Committee. Okay, please remember NPE 1986, SR Sen Committee, and Rastogi Committee. They are suggested reform in accountability. Now, टीचर आर अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स. टीचर को अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए किसके तरफ? टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स. द टीचर्स आर अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन एंड लाइफ लॉन्ग टीचिंग एंड लर्निंग. सो स्टूडेंट्स, so in students the teacher should be sincere and hard worker. Okay, then only she can teach the students properly. Now teacher are accountability towards the society. They need to motivate the weaker section of the society, and they need to coordinate their various activities of the society. पढ़ाते वक्त एनवायरनमेंट को रिलेट करके, सराउंडिंग को, सोसाइटी को रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड, द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड. एंड प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन क्या है? टीचिंग है. सो दे नीड टू वर्क देम. सो हेल्प द स्टूडेंट्स इन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन स्टडीज़. उनका काम ही वही है, स्टूडेंट्स का डेवलप कैसा होगा उसके ऊपर काम करना चाहिए. नाउ लाइफ लॉन्ग टीचिंग एंड लर्निंग. सो दे नीड एक्सलेंट नॉलेज, excellent in subject, excellent knowledge in subject, understanding learning requirement of the students. ओके, लर्निंग रिक्वायरमेंट मतलब क्या है? देखो कुछ बच्चे होते हैं, आप बस ऐसे पढ़ाते जाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा. कुछ लोग को राइटिंग से समझ में आता है, कुछ लोग को ड्राइंग से समझ में आता है. सो सबका तरीका अलग अलग होता है. सो द टीचर शुड अंडरस्टैंड द टीचिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट्स को कैसे समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी. टीचर शुड बी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, towards society, towards the profession, and lifelong teaching and learning. Who suggested reform? NPE and SRSN committee and Rastogi. Okay. Now
Question number 3. What is feedback mechanism of teachers? Explain. फीडबैक देना का मतलब क्या होता है? आपको तो सबको पता होगा फीडबैक. आप फीडबैक देते हो ना, व्हाट्सअप में फीडबैक देते हो, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो उसमें फीडबैक देते हो. यस और नो? सो फीडबैक का मतलब क्या है? उसमें कुछ भी कमी रह जाएगी तो पता चलेगा. फीडबैक देना, हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या ख़राब है कि नहीं, लाइक दैट. सो टीचर्स को भी फीडबैक देना चाहिए, वो अच्छे पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे. इज़ हर टीचिंग मेथड इज़ गुड और नॉट गुड, और सी नीड टू चेंज. वो कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे कि नहीं है, और उनके पढ़ाने के तरीका कुछ बदलना चाहिए कि नहीं, वो सब फीडबैक में पता चलेगा. ठीक है. सो फीडबैक मैकेनिज्म इज़ इम्पोर्टेंट. So feedback mechanism is important. We know why it is important. To see whether or not a teacher is capable of motivating students in perform in academic year. क्या एक टीचर का कैपेबल है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ा पाए और पढ़ाने में उन स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस हो रहा है, वो देखना चाहिए. नेक्स्ट, थ्रू फीडबैक से क्या पता चलता है? टीचर्स कैन प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विथ सजेशंस फॉर डेवलपमेंट. फीडबैक से टीचर सजेशन दे सकते हैं. सो दैट्स वाई आप कोई भी किसी का भी बच्चे का नोटबुक आप चेक कर रहे हो तो आपको फीडबैक दे रहे हो. जब साइन कर रहे हो उसके बाद येस गुड हैंड राइटिंग, नीड टू राइट वेल इन हैंड राइटिंग, कीप इट ऑफ, like that. So teachers can provide the students with the suggestions for development. कुछ अच्छा करना चाहिए या क्या करना चाहिए, लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड करेक्शन ऑफ द एरर्स, क्या कमी रह रही है आंसर में, वो सब बता सकते हैं. इट हेल्प्स इन इम्प्रूव इन देयर टीचिंग स्किल. इन फीडबैक मैकेनिज्म द टीचर help in improve their skill. She can improve in their teaching skill. Change in curriculum activities. यही एक्टिविटी से कुछ अच्छा नहीं आ रहा है तो करिकुलम को चेंज भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं. द टीचर कैन नो व्हाट द स्टूडेंट्स नीड. इन फीडबैक द टीचर कैन नो in which ways he need to teach and what the students need. Feedback mechanism is important for both the teacher and student. Okay, this is all about feedback mechanism. Okay, so if any doubt is there you can ask me in the comment box. Thank you for watching my video. Namaste.